Hello everyone. In this video, we will discuss about one of the most important literary critic whose name is Ronald Barthes. Barthes has wrote so many works and he also present and also gave some important views which influenced the field of literary criticism. So let's start with his biography. Ronald Barthes' birth date was 1915 to 1980. It was his birth date. He particularly belonged to France. He was a French citizen, literary theorist, essayist, as he wrote so many essays, philosopher, critic, and semioticist. और सेमियोटिशियन यानी कि जो सिमेटिक्स की स्टडी करता है, जैसे एसेइस्ट जो ऐसे लिखता है, फिलोसफर जो कि फिलोसफी वगैरह में जिसने काम किया है, क्रिटिक जो कि क्रिटिक करता है किसी भी एक टेक्स्ट की, किसी भी एक वर्क की. He influenced the development of many schools of theory, including structuralism, semantics, social theory, design theory, anthropology, post-structuralism. It means there are so many schools of theory related to literary criticism. For example, structuralism, post-structuralism, semiotics, social theory, anthropology, etc. So he influenced and he also developed these theories. He known for his developing and extending the field of semiotics. तो सबसे ज़्यादा वो फेमस किस लिए हुआ है कि उसने जो सेमियोटिक्स एक फील्ड है उसमें उसने काफ़ी काम किया है. In 1953, his first full-length work was Writing Zero Degree. In 1953, he wrote a book, Writing Zero Degree, and this book was published in 1953. It was a book of literary criticism. He wrote its introduction as no more than an introduction to what a हिस्ट्री ऑफ राइटिंग माइट बी. इसके जो इंट्रोडक्शन उसने जो लिखा है वो ये लिखा, ये इसका इंट्रोडक्शन है. एंड दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट कंटेन 4 essays. In this essay he distinguished writing from style and language. यानी कि फर्स्ट पार्ट में उसने 4 ऐसे लिखे हैं जिसमें उसने राइटिंग को लैंग्वेज और स्टाइल से डिस्टिंग्विश किया है. एंड द सेकंड पार्ट एग्जामिन वेरियस मोड्स ऑफ मॉडर्न राइटिंग. मॉडर्न राइटिंग के क्या क्या मोड हैं, क्या क्या तरीके हैं, अलग अलग टाइप्स है मॉडर्न राइटिंग के, उसको उसने एग्जामिन किया है. एंड क्रिटिक फ्रेंच सोशलिस्ट रियलिस्ट राइटर्स ऑन द ग्राउंड दैट दे टिपिकली एम्प्लॉय कन्वेंशनल लिटरेरी ट्रॉप्स. और उसने जो फ्रेंच सोशलिस्ट हैं उसको उन्होंने क्रिटिक किया है क्योंकि वो क्या करते हैं, ये दे यूज्ड कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल लिटरेरी मेथड्स. So the first point is he wrote a work, Writing Zero Degree, which was published in 1953, and in this book this book is divided into two parts. The first part contains 4 essays, and in this essay he distinguished writing from style and languages, and in the second part he examined various modes of or type of modern writing, and he critiqued the French socialists as they used the conventional literary methods. So this is the first point. And in 1952, he began to write a popular series of bi-monthly essays for the magazine Les Letters Nouvelles, in which he dismantled myth of popular culture and gathered in methodologies. It means in 1952 उसने एक बाई मंथली ऐसे यानी कि एक ऐसे जो कि मंथ में 2 बार पब्लिश्ड होता है वो उसने लिखना शुरू किया. किस मैगज़ीन के लिए, मतलब उसने एक बाई मंथली ऐसे लिखा. एक मैगज़ीन है जिस मैगज़ीन का नाम था लेस लेटर्स नॉवेल्स. इसमें इन्होंने जो पॉपुलर कल्चर जो मिथ हैं, जो हमारे मिथ है, अब मिथ क्या है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. तो उसने जो मिथ है उसको उन्होंने डिसमेंटल किया, यानी कि उसको बोला कि मिथ क्या है उसको उन्होंने खारिज किया. एंड उसके जो थॉट्स हैं, मतलब बाई मंथली ऐसे था, हर एक मंथ में 2 ऐसे आते थे. तो जितने भी ऐसेज उसने लिखे हैं, ऑल ऑफ द ऐसेज इज गैदर्ड इन
methodologies, which was published in 1957. In it he talk about the culture of France. इन essays में वह ने फ्रांस के कल्चर के बारे में बात करी थी. And in it he examined the tendency of contemporary social value system to create modern myth. It means in this essays he discussed that how the modern culture, how the present culture is responsible for creating the modern myth. This is the second point. And in 1967 he wrote an essay, The Death of the Author. ऑथर की डेथ. अब इस आगे पढ़ने से पहले द डेथ ऑफ द ऑथर का मतलब ये होता है कि कोई भी एक हम किताब पढ़ रहे हैं, कोई भी हम एक बुक पढ़ रहे हैं, तो वो किसी न किसी इंसान ने लिखी है और उस इंसान को हम ऑथर कहते हैं, राइटर कहते हैं. अब वो किताब उसने लिखी और फिर वो रीडर उस किताब को पढ़ रहा है. ठीक है, तो जब हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं. ठीक है, क्रिटिक्स ने दो तरीके उसके निकाले हैं कि एक तो ये होता है कि कोई एक कुछ क्रिटिक्स ने लिटरेरी जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये बोला कि जो किताब का इंटरप्रिटेशन होता है वो ऑथर क्या कहना चाहता है इसके बेसिस पे होता है. लेकिन बार्थस ने ये बोला था, रोनाल्ड ने ये बोला था कि ऑथर ने किताब लिखी और उसका काम खत्म हो चुका है, तो ऑथर जो है मर चुका है. अब राइटर्स के ऊपर रीडर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हाउ दे इंटरप्रिटिएट द टेक्स्ट, इंटरप्रिटिएट द बुक. इट इज टोटली बेस्ड ऑन द रीडर्स. द वर्क ऑफ द author is complete after writing the book. Now the next work, how to interpret or how to understand the book is totally based on the readers. तो इसमें इस बुक में उसने ये अपनी बातें रखी हैं. Barthes argue against traditional literary criticism, practice of incorporating the intention biographical context of an author in an interpretation of a text. यानी कि in traditional literary criticism, some critics said that the biography of a author, the thinking, the thoughts of the author is very important for interpretation of the book. ठीक है, ऑथर ने बुक लिखी, उसकी बायोग्राफी को हमें पढ़ना ज़रूरी है. अगर हमें किताब के बारे में जानना है, उसके थॉट्स और फीलिंग को पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम उस किताब को समझ सकते हैं. ये पहले के लिटरेरी क्रिटिसिज्म ने बोला था. एंड रोनाल्ड बार्थस वाज अगेंस्ट दिस. बार्थस आर्ग्यू दैट राइटिंग एंड क्रिएटर आर अनरिलेटेड. कि जो राइटिंग है, ठीक है, राइटिंग यानी कि ऑथर ने वर्क लिखा वो राइटिंग है. अब क्रिएटर कौन है, व्हाट इज़ क्रिएटर, हु इज़ क्रिएटर. क्रिएटर जो है वो रीडर है, यानी कि वो अपना खुद की ही किताब पढ़ के अपनी खुद की ही इमेज, अपनी खुद की ही एक इमेज दिमाग में बना रहे हैं. तो रीडर्स जो है वो क्रिएटर हैं. तो ये दोनों क्या है, अनरिलेटेड हैं. दे आर अनरिलेटेड टू ईच अदर. द ऐसे later appeared in image music text. ये जो ऐसे है जो किसने लिखा था, द डेथ ऑफ द ऑथर, was later published in his book Image Music Text, which was published in 1977. And Barthes disagreed that the image of literature is centered on author's personal life rather than text or a work. और बार्थस ने इस बात से डिसएग्रीड थे कि कोई भी एक जो लिटरेचर हमारे पास प्रेजेंट है उसका ऑथर्स की पर्सनल लाइफ से कोई भी रिलेशन नहीं है. द टेक्स्ट और अ बुक इज़ अ बुक. देयर इज़ नॉट एनी रिलेशन टू द book does not have any relation with the life of the author. इसका मानना था. And for Mallarmé from France, it is a language which speak not the author. Mallarmé जो था उसने, जो कि फ्रांस में ही थे, एक क्रिटिक था, उसने ये बोला था कि इट इज़ अ लैंग्वेज विच स्पीक. किसी भी टेक्स्ट की एक लैंग्वेज होती है जो कि बोलती है, ऑथर नहीं बोलता, लैंग्वेज बोलती है. देन the text and the author. The text and the author. The text is a tissue of citation resulting from the thousand sources of culture. A text and an author is also a work which was written by Mallarmé. And in this work उसने ये बोला कि कोई भी एक टेक्स्ट है हमारे पास, टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक और एन ऐसे और यू कैन से एनीथिंग. कोई भी एक टेक्स्ट है. टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट जो होता है उसके अंदर हम देखते हैं बहुत सारे कोटेशंस होते हैं. ठीक है, बहुत सारे कोटेशंस होते हैं. तो टेक्स्ट इज़ अ टिश्यू ऑफ अ कोटेशन. उसमें बहुत सारे कोटेशन हमें देखने को मिलते हैं. एंड दिस कोटेशन, अब ये कोटेशन कहाँ से आए, कोटेशन जो है वो अलग अलग कल्चर से हमारे पास आए हुए होते हैं. द यूनिटी ऑफ टेक्स्ट इज़ नॉट इन इट्स ओरिजिन बट इन इट्स डेस्टिनेशन, लिसनर एंड रीडर. यानी कि जो यूनिटी है, जो हमारा टेक्स्ट है उसकी जो यूनिटी है, इज़ नॉट बेस्ड ऑन द ऑथर, इट इज़ बेस्ड ऑन द रीडर और द
creator or listener. Now, the next point is द बर्थ ऑफ द रीडर मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ द डेथ ऑफ वन ऑफ द ऑथर। यानी कि एक रीडर तभी जन्म ले सकता है जब एक ऑथर हम मरेगा। यानी कि एक टेक्स्ट को हम तभी समझ सकते हैं जब हम ऑथर को हमें भूलना होगा और रीडर जो है वो पूरी तरीके से लैंग्वेज पर फोकस करके उसे अपनी एक्सपीरियंसेस से उसको समझे। हिज लास्ट मेजर वर्क वाज कैमेरा लुसिडा। ठीक है, इस पार्टिकुलरली एन essay about the nature of photography and partly a meditation on photographs of his mother. His last work was कैमेरा लुसिडा। इसके अंदर उसने जो एक फोटोग्राफी है उसके नेचर के बारे में डिस्कस किया है और अपनी मदर की जो फोटोग्राफ्स हैं उसको उसने रेफर किया है इस चीज़ में। द बुक डेवलप द ट्विन्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडियम एंड पेंचुअम। स्टडियम क्या होता है? दो कॉन्सेप्ट उसने डेवलप्ड करे हैं। स्टडियम होता है डिनोटिंग द कल्चरल लिंग्विस्टिक एंड पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ फोटोग्राफ। इसका मतलब ये है कि व्हेन वी सी अ फोटोग्राफ वी सी सम डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर इन इट, सम लिंग्विस्टिक साइंस कैन बी सीन इन अ photograph and some political interpretation. For example, if there is a photograph of a scenery, by seeing the scenery, जब हम एक सीनरी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वह सीनरी कहाँ की है, बाय वहाँ के जो विलेजेस हैं, वहाँ के जो घर हैं उसको देख के। ठीक है, लिंग्विस्टिक यानी कि अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है तो उस लिंग्विस्टिक्स को इंटरप्रिटेट किया जाता है। पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन हमें वहाँ के जो ज्योग्राफी है, वहाँ की जो पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन कैसे पता चलेगी कि अगर वो एक गांव की है तो पता चलता है कि किस तरीके का कौन से देश की सीनरी में वो भी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टडियम। एंड पेंचुआ मतलब होता है डिनोटिंग द वाउंडिंग पर्सनल टचिंग डिटेल्स। यानी कि किसी फोटोग्राफ को जब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे अपने बचपन की कोई फोटोग्राफ है, जब हम उसको देखते हैं तो हमारे अंदर हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं या हमारे कोई पास्ट कोई बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमको याद आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज़ अ पर्सन इन आवर लाइफ हु हैज़ डेड and by seeing his or her photo we remember those time which we had spent with him or her। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो उसको हम बोलते हैं पेंटुअम। देन बार्थस। अब है रोनाल्ड बार्थस की जो आइडियाज़ हैं, अर्लीस्ट जो शुरू के आइडियाज़ हैं वो रिएक्टेड था असेंशलिस्टिक फ़िलोसफी। मतलब कि उसने जो असेंशलिस्टिक फ़िलोसफी है उससे रिलेटेड उसके अगेंस्ट उसने अपने विचार रखे हैं। द फिगर ऑफ द असेंशलिज्म के जो फिगर हेड है वो कौन है? जीन पॉल सैट्री हैं। व्हाट इज़ लिटरेचर, जो कि उसने एक वो किताब लिखी है जिसमें उसने एक्सप्रेस किया है डिसएन्चेंटमेंट both with establishment form of writing and more experimental which he feels alienate readers। यानी कि जो जीन पॉल सार्ट्रे हैं उसने व्हाट इज़ लिटरेचर एक वर्क लिखा है और इसमें उसने बताया है कि किस तरीके से जो मॉडर्न आजकल की जो राइटिंग है, आजकल की जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ राइटिंग है, ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है राइटिंग में वह किस तरीके की रीडर किसके कारण जो है वो रीडर्स हैं वो काफ़ी बुक से दूर होते जा रही हैं। पहले के ज़माने में बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारे लोग जो है वो इंटरेस्टेड थे इन रीडिंग द बुक्स, बट एट द प्रेजेंट टाइम्स वी सी दैट कि जो आजकल लोग हैं वो बुक से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं बिकॉज जो मॉडर्न राइटिंग डेवलप हुई है उसके कारण। इंस्टेंट बार्थस का राइटिंग इज़ अ यूनिक एंड क्रिएटिव आर्ट। मतलब कि बार्थस ने जो है वो राइटिंग को एक यूनिक और क्रिएटिव आर्ट कहा है। ठीक है, इन माइकलेट ए क्रिटिकल एनालाइज ऑफ फ्रेंच हिस्टोरियन जूलियस माइकलेट उसका एक वर्क है जो कि एक माइकलेट जो है वो रोनाल्ड बार्थस ने एक वर्क लिखा था माइकलेट, और ये जो माइकलेट है दिस वर्क इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन अ फ्रेंच historian whose name was Julius Michelet, and Barthes argued that Michelet's view of history एंड सोसाइटी आर ऑब्वियसली फ्लॉड। यानी कि माइकलेट का जो व्यू था हिस्ट्री और सोसाइटी को लेके वो क्या था, बेकार था। ठीक है, तो उसी को उसने अपने इस वर्क में प्रेजेंट किया है। बार्थस बिलीव दैट आर्ट शुड बी क्रिटिकल एंड शुड इंटेरोगेट द वर्ल्ड रेदर देन सीक टू एक्सप्लेन इट एज माइकलेट हैड डन। बार्थस ने बोला है कि आर्ट ऐसे होनी चाहिए जो कि क्रिटिकल हो और हमारे संसार को समझने में हमारी मदद करनी चाहिए। ठीक है, हमारी मदद करनी चाहिए, आर्ट इस तरीके की होनी चाहिए, और माइकलेट ने भी यही
विचार रखे हैं। Now there is some concept given by Ronald Barthes, signifier and signified, semantics and myth जिसको हम बोलते हैं। सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड क्या होता है, ये आप काफ़ी जानते ही होंगे। सिग्निफायर होता है कि कोई भी एक इमेज और साउंड, जब हमारे हमारे सामने कोई भी इमेज आती है, कोई भी हमारे पास साउंड आती है, ठीक है, तो वह इमेज और साउंड जो होती है उसे हम सिग्निफायर कहते हैं। एंड द सिग्निफाइड इज उस इमेज और साउंड को देखने के बाद हमारे दिमाग में जो मेंटल कॉन्सेप्ट बनता है उसे हम सिग्निफाइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ एप्पल। व्हेन वी सी दिस एप्पल, देन दिस picture is known as signifier. By seeing this apple, by seeing this picture, there is a mental image of an apple is present, is shown in our mind। ठीक है, हमारे माइंड में क्या होगी, वो आने शुरू हो जाएगी। तो दिस इज सिग्निफाइड। जब कोई शेप, कोई नाम हमारे दिमाग में आ जाए तो उसे सिग्निफाइड बोला जाता है। सो यू कैन ऑल्सो से दैट सिग्निफायर इज फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंग एंड सिग्निफाइड इज द मेंटल कॉन्सेप्ट। अब मिथ क्या होता है? मिथ होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस मीनिंग क्रिएटेड एज द रिजल्ट ऑफ सिमोटिक प्रोसेस। ये जो सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का जो चीज़ होती है कि ये कोई भी एक आवाज़ आई और हमारे दिमाग में मेंटल इमेज बनी, ठीक है, तो इसको हम सिमोटिक प्रोसेस कहते हैं। और इसी सिमोटिक प्रोसेस से हमारे, जब ये कलेक्टिव फॉर्म में बहुत ज़्यादा सिमोटिक प्रोसेस होती है, के बाद एक इवेंट्स होने शुरू हो जाते हैं, तो उससे हमारे दिमाग में मिथ बनना शुरू हो जाता है। Now, Barthes also proposed that myth is a chain of semantics। कि myth क्या है? semantics की एक chain होती है which when expressed or seen by member of society create an subconscious meaning। जब एक member of society होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उसके दिमाग में जो है वो जब एक चेन ऑफ सिमोटिक्स बनती है, तो इससे क्या होता है कि पूरे एक सोसाइटी में एक मिथ डेवलप हो जाता है। एक सबकॉन्शियस चीज़ होती है वो, ठीक है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो होती है। अब है द फैशन सिस्टम। फैशन सिस्टम क्या होता है? फैशन सिस्टम एक वर्क है जो कि बार्थेस ने लिखा था। एंड इन दिस वर्क ही शोड दैट हाउ द अल्ट्रेशन ऑफ साइन कोड इजिली बी ट्रांसलेटेड इनटू वर्ड्स। कि किस तरीके से जो साइन है उसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है, लेकिन उसके साइन के मीनिंग में, इट मीन्स जो सिग्निफाइड होता है उसमें चेंज किया जा सकता है, उसमें चेंज हो जाता है और हम उसको वर्ड्स में ट्रांसलेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि शराब, अल्कोहल की एक डार्क बोतल जो है वो क्या होती थी, इट इज़ शोन एज इट इज़ बैड फॉर हेल्थ, ठीक है। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में यह जो अल्कोहल का जो बोतल है उसको देख के या उसकी इमेज को देख के पहले हमारे दिमाग में क्या आ रहा था कि इट इज़ बैड फॉर हेल्थ। लेकिन आज क्या है कि ये एक क्या बोलते हैं, फैशन का एक हमारे पास हमारे वो आता है कि एक क्या बोलते हैं, बोतल है शराब की, तो यानी कि एक हमको मॉडर्न दिखा रही है, हमको एक, यानी कि हमारा जो वो है एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस शो कर रही है आज के ज़माने में। तो पहले जो अल्कोहल की जो बोतल थी उसका मीनिंग कुछ और था और अब उसका मीनिंग कुछ और हो चुका है। यानी कि जो साइन है वो सेम है लेकिन उसका मीनिंग क्या है, चेंज हो गया है। तो यही इसी को उसने जो फैशन सिस्टम है इसमें उसने बताया है, बार्थेस ने। एंड he also wrote one of the most important work which is S&Z। एज एक इम्पोर्टेंट वर्क है। इसके अंदर उसने 5 कोड्स के बारे में बातें करी हैं। सजेस्टेड दैट देयर विल बी 5 कोड्स दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। कि 5 कोड्स हैं जिसकी मदद से हम किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग को समझ सकते हैं, ठीक है। एंड ही आल्सो सेड दैट टेक्स्ट में बी ओपन और क्लोज्ड। इट मीन्स इट इज़ क्लोज्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब वो छोटा सा हो सकता है और ओपन भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे इवेंट्स उसमें हो सकते हैं। क्लोज्ड होता है कि जस्ट द बिगिनिंग एंड द एंड, और ओपन होता है कि इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। द फर्स्ट कोड इज हर्मेन्यूटिक्स और इग्मा इनिग्मा कोड। हर्मेन्यूटिक्स, आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो ऑफ हर्मेन्यूटिक्स। हर्मेन्यूटिक्स के अंतर्गत क्या होता है कि एक मिस्ट्री उसके अंतर्गत होती है। देयर इज अ मिस्ट्री, सम मिस्ट्री इन द टेक्स्ट एंड इट मेक्स ऑडियंस वांट टू नो व्हाट विल गोइंग टू हैपन इन द टेक्स्ट। सो द मिस्ट्री इन द टेक्स्ट is known as the hermeneutics. The second is pro-arietic action code. It means sequential elements of action. There is some actions, sequential actions in the text. This is known as pro-arietic action, and it
add suspense to the text. The third one is semantic code. Semantic code means part within the text that suggests or refer to additional meaning. There is some part in the text which express some additional meaning. The text is not that part. The semantic part is not so important, but it add that add additional meaning in the text. Then the next is symbolic code. In symbolic code, it exercise opposite to show contrast and create greater meaning, creating tension, drama and character development. इस यानी कि बहुत मतलब सीक्वेंस सी चीज़ें चल रही है, लेकिन कुछ अपोजिट चीज़ें भी हमें अपने किसी टेक्स्ट में देखने को मिलती है, कुछ अपोजिट इवेंट, कॉन्ट्रास्ट इवेंट, उसे हम बोलते हैं सिंबॉलिक कोड. उसके बाद होते हैं रेफरेंशियल कोड. रेफरेंशियल कोड यानी कि जो एक्सटर्नल नॉलेज उसके अंतर्गत होती है. ठीक है, जैसे कि कोई भी स्टोरी चल रही है तो उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जस्ट फॉर आवर टू हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जस्ट टू इंक्रीज आवर नॉलेज, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा नॉलेज होती है उसे हम रेफरेंशियल कोड कहते हैं. नाउ एस इज पब्लिश्ड इन एस is published in 1978. Structural analysis of सार द शॉर्ट स्टोरी ऑफ हॉनरे डी प्लास. यानी कि एस.एन.जेड जो है वो 1978 में पब्लिश हुई थी और यह एक शॉर्ट स्टोरी है हॉनरे डी ब्लार्च की. स्टोरी का नाम है सारासिन, उसी की ही स्ट्रक्चरल एनालाइज इसके अंतर्गत किया गया है. ठीक है, उसके बाद द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट. This work is published in 1973, and in this work he said the effect of a text. What is the effect of a text? There are two effects of a text: pleasure and bliss. And text has also two type of text: readly text and writely text. What is readly text? Readly text give pleasure and writely text give bliss. रीडरली टेक्स्ट क्या होता है? रीडरली टेक्स्ट होता है कि यानी कि ऑथर का इसमें ज़्यादा डोमिनेंस होता है. इसमें ऑथर ने लिख दिया और रीडर को जस्ट उसे रीड आउट करना, उसे समझना होता है, तो वह केवल हमको प्लेजर देता है. और राइटली होता है कि ऑथर ने लिख दिया लेकिन राइटर उसे अपनी तरफ से इंटरप्रिटेट करके उसको समझता है, उसे हम बोलते हैं राइटली टेक्स्ट एंड इट गिव ब्लिस. Then in 2012, he also wrote important work, Travels in China, and in this work this book consists his notes from a 3 week ट्रिप टू चाइना में जब वह 3 हफ्ते के लिए गया था तो उसके एक्सपीरियंसेस इसमें उसने लिखे हैं 2012 में. एंड द एक्सपीरियंसेस फेल्ट दैट डिसअपॉइंटमेंट एज ही फाउंड चाइना नॉट एट ऑल एक्सोटिक, नॉट एट ऑल डिसओरिएंटिंग. यानी कि इसमें उसने चाइना के बारे में डिसअपॉइंटमेंट चीज़ें लिखी क्योंकि उसको कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं मिली है चाइना में जाके. Then the last work is The Last Happy Writer, which wrote in 1964, and this title is referred to Voltaire. ये जो टाइटल है द लास्ट हैप्पी राइटर, यह वोल्टायर को रेफर किया गया है. ठीक है, इस बुक में उसने कमेंट किया है मॉडर्न थिंकर्स के बारे में, जो प्रॉब्लम्स मॉडर्न थिंकर्स को होती है. ठीक है, उसके बारे में उसने डिस्कस इसके अंतर्गत किया है. एंड he also translated some works into English. So there is a list of some work which was written by Roland Barthes. And there is also a work Incident. There is also a work Incident. Incident is a collection of 4 essays which was published in 1987. This work was published posthumously by Francois Roland, रोनाल्ड्स लिटरेरी एग्जीक्यूटर द्वारा इसको पब्लिश किया गया था. तो 4 एसेस के अंदर कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऐसे हैं ला ल्यूमेरी डी सुड ओस्ट, which was published in 1970, which was written in 1977, and it reflects southwest of France, the odor and बायो में. ठीक है, इसमें उसने जो
वेस्ट है, फ्रांस का जो वेस्ट पार्ट है उसको, उसके बारे में उसने इसमें लिखा है। सेकंड ऐसे उसका जो है वो इंसिडेंट रिटर्न इन 1969 में उसने लिखा था, डिटेल बार्थोस हॉलीडेज इन मोरक्को। बार्थोस की जो हॉलीडे है मोरक्को में, इसके बारे में इसमें लिखा गया है, वेयर ही पेज मैन एंड बॉयज फॉर सेक्स। इन थर्ड ऐसे ओ प्लेस की शोरो, इनके अंदर, इसके अंतर्गत ही डिस्क्राइब ली पैलेस, ए फैशनेबल थिएटर हाउस इन पेरिस। इन फोर्थ ऐसे सोरियस डी पेरिस इज अ डायरी फ्रॉम अगस्त टू सितंबर इन 1979 where Ronalds admit to using male escort as all his relationship have been disappointing to him. The last is criticism and truth. In 1966 वर्क ट्रांसलेटेड इंग्लिश, यह एक वर्क है जो कि 1966 में लिखा था और ये वर्क जो है वो 1987 में ट्रांसलेटेड हुआ था इन इंग्लिश में। द बुक इज रिस्पॉन्स टू रेमोट प्रिकार्ड्स का क्रिटिसिज्म ऑफ बार्थेस अर्लियर 1963 वर्क सुर रैसिनी, यानी कि बार्थेस ने एक वर्क लिखा था, रेमोट ने एक वर्क लिखा था, सुर रैसिनी, इसका एक ट्रांसलेशन है ये क्रिटिसिज्म एंड ट्रूथ। So this is all about the work of Ronald Barthes.